डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। Good evening. Myself, Dr. Naishal Raval, would like to welcome you all at Chaitanya Studio, Dr. Baba Saheb Ambedkar Open University, Ahmedabad. In the last sessions, we had talked about the industrial sickness and the trade unions. We had also talked about the consumerism and the consumer rights. In the current sessions, we will be covering the topic related to the workers' participation in management and the industrial relationship. So let us start with the first slide. Block 4, Society and Indian Industry and Global Trends with the Cases. Unit 4, Workers' Participation and the Industrial Relations. So learning objective will be the concept of worker participations. In the last we had talked about the industrial sickness and the trade unions. उसमें कहीं ना कहीं हमने यूनियन के बारे में बात किया था, वर्कर्स का कैसा यूनियन रहता है, और now how the worker is going to participate in the management, followed by the concept of industrial relationship. So let us talk about the introductions related to the WPM. So this concept in business only possible when laborers are well experienced and the educated. So they can understand the changing technological comes, dynamic complex business system. The more educated and the experienced labor, the more participation in the business can be achieved. ट्रेड यूनियंस में हमने बात किया था कि भाई वर्कर्स का एक पर्टिकुलर यूनियन होता है, वो मैनेजमेंट के डिसीजंस के साथ रहने की कोशिश करता है, या तो अगर जो डिसीजंस पसंद ना आया हो मैनेजमेंट को वो रिप्रेजेंट करे, एंड देन दे ट्राई टू फाइंड दिस सॉल्यूशंस. बट यहाँ पर क्या है कि अगर वर्कर को पार्टिसिपेट करना है मैनेजमेंट के डिसीजंस में, या मैनेजमेंट को कोई सजेशंस देना करना है, एडवाइजेस देना है, तो उसके लिए वर्कर्स हैज़ टू बी वेल एक्सपीरियंस एंड दी वेल एजुकेटेड. Industrial relations and the disputes are very much important aspect to understand why we should study it. The answer is does affect the strategic capability of a particular country. बेस्ट एग्जांपल दे दो तो अपने कंट्री में एक कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स. ठीक है, अ गवर्नमेंट ओन कंपनी, मैन्युफैक्चर करते, रिसर्च करते इन द सिविलियन एंड द मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लेस एंड अदर सब सिस्टम्स. द एम्प्लॉयज ऑफ दिस कंपनी वेंट ऑन द स्ट्राइक ऑन वेरियस प्रॉब्लम. Because of wages, they got support from ordinary factory board workers, also which gain hampered the supply of ammunitions to the armed force of India, which shows how serious these industrial relations are. ये तो था सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल. आने वाले स्लाइड्स में हम इससे भी ज़्यादा और एग्जाम्पल्स देखेंगे. सो इंडस्ट्रियल रिलेशंस कैसे वर्कर्स और कंपनी के बीच में होना चाहिए, उसकी चर्चा यहाँ पर हम करते हैं. Workers' participation in the management. Nowadays, it very popular, and these are the cases with the few bigger companies were rescued and managed by the employees. The educated and the well-experienced workers are always there to go for and technologically advanced, which have given a capability that employees can run the institution or companies as they have experience from the grassroots level. यदि अगर मैनेजमेंट में कभी कोई एब्सेंट रहता है और वर्कर को अंदर इन्वॉल्व किया जाता है डिसीजंस लेने में, या एजुकेटेड वर्कर है और टेक्निकली उसको ज़्यादा पता होता है, तो वो कैपेबिलिटी के बारे में और कंपनी का एक्सपीरियंस ग्रास रूट लेवल में बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं. सो द कंसेप्ट ऑफ एम्प्लॉय ओन कंपनीज आर एडवांस फॉर्म ऑफ द वर्कर्स पार्टिसिपेशंस, एंड दिस कंसेप्ट इज क्वाइट ओल्डर or not new in the United States and many advanced countries, but it has not yet taken off in India in a bigger way. जितना एडवांस नेशन में ये कंसेप्ट चलता है कि भाई एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में होना चाहिए, उतना इंडिया में नहीं है. कहीं ना कहीं टॉप लेवल मैनेजमेंट को इनसिक्योरिटी लगती है, तो वो इतनी
आसानी से किसी एम्प्लॉयज़ को मैनेजमेंट में शामिल नहीं करेंगे, बिकॉज वी आर द डेवलपिंग नेशंस, सो टेक्निकली हम इतने एडवांस नहीं हैं। केथ डेविस ने एक डेफिनेशन दी था वर्कर्स पार्टिसिपेशन के बारे में। उन्होंने कहा था कि इट रिफर्स टू द मेंटल एंड द इमोशनल इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पर्सन इन अ ग्रुप सिचुएशन which assures him to contribute to group goals and share in responsibility of achieving them. मैत्रास ने एक डेफिनेशन दिया था अप्लाई टू द इंडस्ट्री। द कंसेप्ट ऑफ पार्टिसिपेशन मीन्स शेयरिंग in the words of the decision making power by the rank and the file of the industrial establishment through their representative at all the appropriate level of organization in the entire array of managerial action. Just on the lighter note, I would just like to say कि कभी क्रिकेट टीम में भी ये चीज़ होती है, कोच और कैप्टन के बीच में कभी अनबनाव रहता है, तो डेफिनेटली मैनेजमेंट एक डिसीजंस पर आते हैं, या तो कोच को हटाते हैं या तो कैप्टन को हटाएंगे। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशंस। तो एक लाइटर नोट पे अपने क्रिकेट टीम में ज़्यादातर ऐसा होता है कभी, राइट। इंडियन प्रीमियर लीग चलता है अभी, तो उसमें 2-4 क्रिकेटर्स के बीच में कभी माथाकूट हो जाती है और उसका डिसीजंस मैनेजमेंट लेता है। किसी प्लेयर को इंजरी होती है तो कहाँ पर उसको शामिल करने का, या तो कोई प्लेयर रिटायर्ड हो चुका है तो उसको मैनेजमेंट में शामिल कर देते हैं। तो सच काइंड ऑफ एन इंटरफियरेंस और सच काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट विल बी अ गुड फॉर द कंपनी एंड द टीम एज वेल। सो किथ डेविस ने कहा है कि भाई जो बंदा ग्रुप में काम करता है या टीम से काम करता है तो उसको उस ग्रुप का गोल और ऑब्जेक्टिव पता होता है। सो पार्टिसिपेशन मीन्स अ शेयरिंग, decision making power by the rank and the file of an industrial establishment through their representative and the entire array of managerial actions. So now these are the characteristics of workers participation management कि it assumes willingly acceptance of obligation by worker, management worker से obligation लेता है। Participation implies practices which increase the scope for employees, share of influence in decision making process with the assumptions of responsibility. तो आप किसी मैनेजमेंट में शामिल होते हो, सो आपको एक मौका भी मिलता है अपने आप को साबित करने का। ऑब्लिगेशंस कंपनी के ऊपर रहता है। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट नॉट सीन एज इंडिविजुअल बट एज ए क्लस्टर थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो टॉप लेवल, बॉटम, मिडल लेवल और बॉटम लेवल। बॉटम लेवल से सारे सजेशंस एडवाइसेस मांगे जाते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट टॉप लेवल पे नहीं, बॉटम से मिडल पे जाएगा, मिडल से टॉप पर जाएगा। सो वर्कर्स कंट्रीब्यूशन इन मैनेजमेंट डिफरेंट फ्रॉम द कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड द सेंस दैट व्हाइल द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन द म्यूचुअल ट्रस्ट, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, shared problem solved, later one is essential based on the power play, pressure tactics and the negotiations. The fifth characteristic says about the basic rationale for the workers participation is management, that workers participate their labor and their fates to their place of work. वो जहाँ काम करते हैं वहीं पर उसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, so they can contribute to the outcome of the organization and hence they have legitimate right to share in decision making activities of organizations. So these are the various characteristics. ठीक है। इफ़ आई टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि सेटिस्फैक्शन ऑफ वर्कर्स विश फॉर एक्सप्रेसिवनेस इन द मैटर ऑफ एंटरप्राइज मैनेजमेंट, सर्ज इन द प्रोडक्टिविटी फॉर द एडवांटेज ऑफ ऑल कंसर्न, मेकिंग एम्प्लॉयज अ बेटर मैनेज देयर रोल्स इन द ऑर्गेनाइजेशंस। उनको एक मौका देंगे तो उस वर्कर का भी नॉलेज है, एजुकेशन है या कोई टेक्निकली वो एडवांस है, तो उसको भी एक मौका मिलेगा ऑर्गेनाइजेशंस में अपने आप को एक साबित करने के लिए। सो इन द अल्टीमेट सेंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इन इंडिया इज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस एंड सेटिस्फैक्शंस ऑफ द एम्प्लॉयज, प्रमोट द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स लाइक इंडस्ट्रियल हार्मनी, established and encourage good communication system at all the 3 levels, create a feel of brotherhood among the laborers,
अगर किसी कंपनी ने कोई वर्कर को अपने मैनेजमेंट के डिसीजंस में शामिल किया हो या उसके टीम में शामिल किया हो, अब उस वर्कर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि दूसरे वर्कर के साथ सही ढंग से अपने रिश्ते बनाए रखें। ऐसे नहीं कि भाई अभी मेरा तो मैनेजमेंट में चलता है तो मैं वो जिस वर्कर के साथ काम करता है, कलीग्स के साथ काम करता था, उसको मैं बाय बाय कर दूंगा या बोल दूंगा कि भाई तू कौन है, कैसा है, एक्सेट्रा एंड ऑल। हेल्पिंग हैंडल कन्फ्रंटेशन टू चेंज, सेंस अमंग द वर्कर्स टू कंट्रीब्यूट देयर बेस्ट फॉर द कॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो कभी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करता है, वर्कर्स को इन्वॉल्व करते हैं ताकि वो वर्कर अपना बेस्ट दे एंड रिजल्ट इन टू द ऑर्गेनाइजेशंस बेस्ट। क्रिएट अ सेंस ऑफ कमिटमेंट टू डिसीजन टू विच दे वेर अ पार्टी। So these are the characteristics and the objectives of workers' participations of management. Now, how does they participate? बोल तो दिया कि वर्कर पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो कैसे पार्टिसिपेट करें? तो पार्टिसिपेशंस करने के लिए उसके बाद इंटेंसिटी कितना है, आप पार्टिसिपेट करते हो तो उसका इंटेंसिटी देखा जाता है। फिर पार्टिसिपेट करते हो जिस किसी भी मैटर के, उसमें इंफॉर्मेशन कितनी है वो देखा जाती है। या तो मैनेजमेंट वर्कर से कंसल्ट करते हैं, भाई आने वाले दिनों में क्या करना चाहिए, किस हिसाब से काम करना चाहिए। वर्क फ्रॉम होम कल्चर कोविड में आया था तो बहुत अच्छे तरीके से चलता है, क्योंकि कई सारी कंपनी आज की तारीख में भी वर्क फ्रॉम होम कल्चर को प्रमोट करती है। क्यों? क्योंकि कंपनी की कॉस्ट काफ़ी सारी कम हो चुकी, इलेक्ट्रिसिटी बिल खास तौर से, राइट। सो इंफॉर्मेशंस, इंटेंसिटी, कंसल्ट करो वर्कर से, क्योंकि वर्कर को मार्केट में क्या चलता है वो ज़्यादा पता होता है। एंड वर्कर्स हो, लेबर हो या एम्प्लॉयज, विल यूज द वर्ड एम्प्लॉय। सो एम्प्लॉयज आर नोन ऑफ द मार्केट, वेल नोन ऑफ द मार्केट, सो दे मे गिव सम सजेशंस। एसोसिएट, पार्टिसिपेट करो, वर्कर्स के साथ एसोसिएट हो जाओ, ग्रुप बना लो पूरा। एडमिनिस्ट्रेटिव के तौर पर पार्टिसिपेशंस ऑफ द वर्कर्स, एक्सटेंसिव पार्टिसिपेशंस, राइट। सो these are the ways of participation: intensity, informative, consultative, associative, administrative and the extensive. So this is how workers can participate. ऐसा नहीं कि भाई सीधा डायरेक्ट वर्कर कंपनी में पार्टिसिपेट करे, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करे और मैनेजमेंट उसको जाके पूछेगी। वेरियस वेज, टोटल 6 है: इंटेंसिटी, इंफॉर्मेटिव, कंसल्टेटिव, एसोसिएटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द एक्सटेंसिव। So after talking about the workers' participation in management, let us discuss about the industrial relations and the disputes. Problem कहाँ पर होता है? So bad relation between employers and the employee is a very much serious concern for any particular country. Industrial sector is well connected with each other, and if one industry falls, it affects the multi-foods and reach to the other industry as well. सो एक कंपनी बंद होगी, वो इम्पैक्ट दूसरे को भी करेगा। एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के बीच में भी रिलेशन सही ढंग से होने चाहिए। सो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, द बैड रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड द एम्प्लॉयर, इट इज़ अ वेरी मच सीरियस कंसर्न अबाउट एनी पर्टिकुलर कंट्री एंड दिस कैन लीड टू द फेल इन द इंडस्ट्रियल सिकनेस। कंपनी को असर करने वाली कोई भी मैटर होगी और वो बंद हो गई या गिर गई, कंपनी शटडाउन हो गया, and this will affect multi-food in the reach and it will reach to the other industries also. So the meaning of industrial relation is very broad, but if we define the industrial relation as it is a very complicated web of relationship between the employees and employer, employee and employee, employers and employers, relations of all these three factor relation with the state and the other stakeholders. कहीं पर भी disputes हुआ तो वो सही से काम नहीं करेगा. So it is a serious concern. So in the word of Lester, we say the industrial relation involves an attempt at arriving at solution between the conflicting objective and the values, between the profit motive and the social gains, between the discipline and the freedom,
between the authority and industrial democracy, between bargaining and the corporations, between conflicting interest of the individual, the group and the community. So this is what the industrial disputes are. Let us talk about the causes, reason of industrial disputes. So वहाँ पर दो कारण हैं, एक है इकोनॉमिक, दूसरा है एक्सटर्नल फैक्टर्स. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ एम्प्लॉय होते हैं, उन्होंने कोई डील साइन किया हो, बॉन्ड साइन किया हो, और वो उस हिसाब से काम ना हो. दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द रीजन. द बेस्ट वन आई कैन से द वेजेस. एक ऑटोमोबाइल लीडिंग कंपनी है मारुति, हाई प्रोफाइल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हुआ था उसमें मानेसर प्लांट में. जैसे पहले के स्लाइड्स में मैंने ये भी एक बात कही थी कि भाई रेगुलर एम्प्लॉयज़ और कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ के बारे में. तो जब वेजेस बढ़ाया तो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ को इतना मुनाफा नहीं मिला था उसमें, बट रेगुलर एम्प्लॉयज़ को बहुत सारा मुनाफा मिला था. एंड दैट वाज इम्बैलेंसेस बिटवीन इट. और कुछ समय के लिए ये जो प्लांट लिखा है मानेसर प्लांट, वो बंद रहा था और एम्प्लॉयज़ वेंट ऑन द स्ट्राइक, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स जो थे वो. डियरनेस अलाउंसेस एंड बोनस. फेस्टिवल के टाइम पर बोनस दिया जाए टू द एम्प्लॉयज़, या तो ना दे. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि प्राइवेट कंपनीज बोनस देगी, बट अच्छी खासी कंपनी जो प्रॉफिट मेकिंग होती है वो बोनस देती है. रिसेंटली वन ऑफ द IT जायंट नोन एज द इन्फोसिस कंपनी हैड डिस्ट्रीब्यूटेड 5.11 इक्विटी शेयर्स टू देयर बेस्ट परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़. सो वेरियस कॉजेज़ के बारे में जब बात है तो बोनस आता है, वेजेस आता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, वर्किंग कंडीशन एंड वर्किंग आवर्स. 8-9 घंटे से ज़्यादा 15 घंटे की ड्यूटी लगा के रखी है, तो वर्किंग आवर्स कितने हैं. वीकेंड में भी कभी भी ऑफिस में बुला लेते हैं काम है करके. सो वर्कर्स का ज़रूरी हो तो पैसों की ज़रूरत होती है तो वो काम करने के लिए जाएगा ही जाएगा. वर्किंग कंडीशंस कैसे हैं, ऑफिस में वेल इक्विप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मौजूद है कि नहीं है, कंप्यूटर्स पुराने हैं नए हैं. सो वर्किंग कंडीशंस, चेयर सही है कि नहीं है, रूम सही है कि नहीं है. Modernizations and automation of plant and machineries, recognitions of the trade unions, defective recruitment policy, किसको हायर करना है किसको हायर नहीं करना है. तो कंपनी का कभी रिक्रूटमेंट पॉलिसी यही होता है कि भाई अपने करीबी जो लोग होते हैं उसी को एक पोजीशंस के ऊपर बिठा देते हैं ताकि दे कैन बी द पपेट ऑफ द मैनेजमेंट. दिस इज़ द फैक्ट, इट हैपेंस इन द वेरियस इंडस्ट्रीज ऑल्सो. These are the economic issues. So आपको जो सही ढंग से जिस कैटेगरी का बंदा चाहिए उस जगह के लिए और वो बंदा मिलता नहीं है, आपने किसी को उठा के वहाँ पर बिठा दिया हो, तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स क्रिएट करेगा. ठीक है, इट इज़ नॉट ए गुड. एंड डिफेक्टिव लीडरशिप. चलो मान लो कि रिक्रूटमेंट करते समय दरमियान आपने किसी को अपने को वहाँ पर सिलेक्ट कर दिया हो, एंड जो वो लीडर है वो भी लीडरशिप में इतने काबिल नहीं है. जनरली ये क्रिकेट टीम में होता है, कोई प्लेयर इंजर होता है तो किसी को भी कैप्टन बना देते. इंडियन प्रीमियर लीग इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल, दो इट इज़ ए प्योर बिजनेस, और बिजनेस में ये सब इतना देखा नहीं जाता है, उनको तो प्रॉफिट से ही मतलब है. बट द फैक्ट इज़, क्या वो प्लेयर या कैप्टन होने के या लीडर होने के काबिल है कि नहीं है, राइट. और अगर लीडर बनने के बाद वो अपने आप को प्रूव करता है तो डेफिनेटली ही विल बी कंसिडर एज ए महान प्लेयर और क्रिकेटर. जैसे महेंद्र सिंह धोनी, सारे सीनियर प्लेयर ने अपना नाम वापस ले लिया था T20 वर्ल्ड कप खेलने से, एंड उनको कप्तानी सौंपी गई थी. फॉर्चुनेटली वी वॉन द वर्ल्ड कप ऑफ 2007 एंड 2011 एज वेल. सो इफेक्टिव लीडरशिप हो गई यहाँ पर. बट इफ़ वी टॉक अबाउट द इकोनॉमिक इश्यूज,
सबसे पहला आएगा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वेजेस, डियरनेस अलाउंसेस एंड बोनस, वर्किंग कंडीशंस, वर्किंग आवर्स, modernizations and the automation of plant and machineries, recognitions of the trade unions, defective recruitment policy and the defective leadership. Now ये सारे मैटर ऐसी थी कि हम उसको सॉल्व कर सकते हैं या वो अपने कंट्रोल में होता है. बट इफ़ वी टॉक अबाउट दिस सम एक्सटर्नल फैक्टर्स, 2008 और 10 में वेस्ट बंगाल में कुछ लैंड एक्वायर का प्रॉब्लम था, इंटर रीजनल प्रॉब्लम. तो वहाँ पर एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, टाटा मोटर्स. ठीक है, वो स्मॉल कार बनाती है और उन्होंने नैनो कार लॉन्च किया था, जो सबसे सस्ती गाड़ी, राइट. इंडिया में सबसे सस्ती कौन सी मिलती, तो कि मारुति 800, फिर आती थी अल्टो. उसके बाद 2008-10 में जब नैनो लॉन्च किया, छोटी सी कार 1 लाख रुपए में, एंड दे मूव्ड देयर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू गुजरात. 2010 में वो नैनो का प्रोडक्शन शुरू हो गया. अपने अहमदाबाद के पास में एक छोटा सा जगह है साणंद नाम की, वहाँ पर टाटा नैनो प्लांट बिकेम वेरी मच सक्सेसफुल. एंड अकॉर्डिंग टू सम मीडिया रिपोर्ट, ex-Chief Minister of Gujarat had sent an SMS to the chairman of Tata Group, that is Ratan Tata, by just writing Suswagatam, means welcome. और फिर उस गाड़ी का productions was done in the abundant way. The controversy over Tata's investment in Gujarat is a high-profile example of how conflict can spread from the social interest of various communities and the commercial interest of the firm to the politics of the state. एक स्टेट से दूसरे राज्य में जाना पड़ा. This is the best example for industrial disputes and how this company had generated revenue for the state and for them as well is the high profile example regarding the industrial disputes. So finally, here we had covered about the topic related to the industrial disputes, including the workers' participation in management, causes of industrial disputes, that includes the economic causes, and some external factors. External factors are never in our control. So I would like to thank you all. Here we are ending our sessions. Thank you very much. स्वाध्यायः परमः